So welcome students to the part 3 of the chapter The Enemy. This is from the book Vistas, and Dr. Pearl S. Buck has written the chapter. You already know that. So we are in the house of Dr. Serau Hockey, and Serau is in a confusion whether to operate the patient as a doctor or whether to hand him over to the army. So Serau, all in all, he finally now has decided to operate the patient. He used all his surgical talent to operate the patient, and the health of the prisoner was finally improving day by day as he was operating him, as he was giving him the right treatment he needed. And during that period, some incidents happened. I tell you what, the servants, when they came to know that their master is having a person who is the enemy of the country, so it would be bait for the servants as well to leave here, because there might be a danger from the general. And while the servants left the house, Hannah had to manage all the household. First time after the marriage, Hannah had to manage the kitchen work as well. She had to manage the children as well. Recently, Yumi, the lady servant, used to manage the children, but now it's all upon herself. Both the husband and wife were finally all alone in their house with an unknown person, a patient of them. But as a true doctor, as a true human being, Serau was committed to help the prisoner, the war prisoner. He decided to help his enemy. His mistake was that he decided to help the enemy. He takes the enemy to his home. He gives or provides the medical assistance. He keeps him in his house. After knowing all that it might be dangerous for him, the servants left him. Meanwhile, the soldier begins to gain health. He was becoming healthy day by day. So he was no more Serau's patient. One idea came into the mind of Serau that now probably he should kill him, or he should get him killed by somebody. He went to the general and asked him to send his private assassins. The general was all ready to kill the enemy of their country. The general sent the private assassins, the private murderers, to kill the prisoner. And while the assassins, the murderers, were becoming a little late, Serau thought that after all, he is a human being. The prisoner is not at all his enemy. It is the other thing that he is an American. The American people were their enemy. The country was the enemy of Japan. But every person living in America was not their enemy. Thus, he helped the prisoner in escaping out of the country. And Serau finally did what he felt like doing in the first attempt. He saved the life of the prisoner, and he proved to be a good doctor. And I tell you what, Serau had proved to be a great doctor, a great surgeon, and of course, more importantly, a great human being as well. So this was the story. तो बच्चों, पार्ट 3 में हमने बात की कि हमारे उस समय के जापान के मोस्ट प्रोमिनेंट सर्जन डॉक्टर सेराउ होकी के पास में एक पेशेंट है जो कि एक अमेरिकन वॉर प्रिजनर है. वो कन्फ्यूजन में है कि वो उसे बचाए एज ए डॉक्टर, उसको ट्रीट करे, और या फिर उसको वापस पानी में डाल दे, या फिर उसको आर्मी को हैंड ओवर करे ताकि वो एक अच्छा देशभक्त. और फाइनली सेराउ ने किया क्या? एज ए डॉक्टर सेराउ ने उसको ऑपरेट करने की शुरुआत कर दी, यानी उसका ऑपरेशन करने की शुरुआत कर दी. तो सेराउ ने उसका सारा का सारा सर्जिकल टैलेंट जो था, एज ए सर्जन वो टैलेंट रखता था, वो सारा इस्तेमाल किया. डे बाय डे, धीरे धीरे, स्लोली बट स्टैडीली उस पेशेंट की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होने लगा. इसी बीच कुछ घटनाएं हुई. जो नौकर थे, सर्वेंट्स थे, वो खतरे को भांपते हुए कि राजा उनको भी मार सकता है या देश निकाला दे सकता है, तो वो उनका घर छोड़ के चले जाते हैं.
तो अब बचा कौन? हैना और सेडाव। हैना को हाउस होल्ड भी मैनेज करना पड़ा, घर का ध्यान रखना पड़ा, किचन भी उसको मैनेज करना पड़ा, बच्चों को भी मैनेज करना पड़ा। तो अब स्थिति यह है कि हस्बैंड एंड वाइफ सेडाव और हैना दोनों ही उनके घर पे है, सर्वेंट्स उनको छोड़ के चले गए हैं, और अगर वो किसी और को भी बताते तो शायद वो भी उनसे रिश्ता जो है तोड़ लेते। क्यों? क्योंकि जनरल से कौन पंगा लेना चाहेगा, ज़िंदगी खतरे में हो सकती है। सेडाव के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, बीइंग अ गुड डॉक्टर, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय उस पेशेंट को बचाने के। वो अभी उसका एनिमी नहीं है, वो उसका पेशेंट है। सेडाव ने किया क्या? सेडाव की गलती क्या थी सबसे बड़ी? कि सेडाव एक अनजाने आदमी को अपने घर लेके आता है जो कि अच्छी स्थिति में नहीं है, एक डाइंग स्टेट में है, मरने की स्थिति में है, उसको घर लेके आता है, उसको मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, उसको अपने घर में रखता है, ये जानते हुए कि भी ये डेंजरस हो सकता है, उसके बावजूद भी वो उसको घर में रखता है, उसके सर्वेंट्स उसको छोड़ के चले जाते हैं। सोल्जर जो था, अमेरिकन सोल्जर, उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगती है। तो अब सेडाव सोचता है कि ये अब उसका पेशेंट नहीं रहा, अब ये एक स्वस्थ आदमी हो चुका है और अब हम इसको मार सकते हैं, यानी मैं इसको मार सकता हूँ और अपना डॉक्टर होने का फ़र्ज़ तो मैंने निभा लिया और अब मैं एक देशभक्त होने का फ़र्ज़ भी निभा सकता हूँ इसको मार के। तो वो जनरल के पास जाता है, उससे कंसल्ट करता है और जनरल रेडी हो जाता है अपने प्राइवेट असिस्टेंट्स मर्डरर्स भेजने के लिए। ये भी नहीं होगा कि सेडाव ने उसको मारा है। सेडाव और हैना सो जाएंगे और प्राइवेट असिस्टेंट्स उनके घर आएंगे और उसको रातों रात मार देंगे या ठिकाने लगा देंगे। अब आगे होता क्या है कि पहली रात जब वो प्राइवेट असिस्टेंट्स को बुला के आता है तो पूरी रात उसको सेडाव को नींद नहीं आती है, और जब वो सुबह जाके देखता है तो वो पेशेंट वहीं का वहीं उसको स्वस्थ मिलता है, जिंदा मिलता है। यानी वो जो मर्डरर्स थे वो आने थे उस रात को, वो आए नहीं, दूसरे दिन भी नहीं आए। और ऐसे करते करते जब असैसिन्स लेट होते गए तो सेडाव के दिमाग में एक बात आई, आफ्टर ऑल ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, वो एक इंसान है, एक डॉक्टर है, डॉक्टर का काम होता है लोगों की ज़िंदगी बचाना, किसी को मारना नहीं होता। ये जो अमेरिकन वॉर प्रिजनर है ये उसका एनिमी नहीं है, अमेरिका उनकी एनिमी कंट्री है, दुश्मन देश है, लेकिन अमेरिका में रहने वाला वो खुद भी अमेरिका में रह के आया है, पढ़ाई करके आया है, तो वहाँ बुरे लोग होने के साथ साथ कुछ लोग अच्छे भी हैं, तो हर अमेरिका में रहने वाला आदमी उनका दुश्मन नहीं हो सकता। इसलिए सेडाव ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, किसमें? उसको भगाने में, यहाँ से जापान से बाहर निकालने, एस्केप करवाने और अपनी खुद की कंट्री में जाने में सेडाव ने उसकी मदद की। और सेडाव ने फाइनली वही किया जो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा था कि उसको उसके साथ करना चाहिए। इस तरह से सेडाव फाइनली एक अच्छा डॉक्टर और एक अच्छा इंसान भी साबित होता है। तो बच्चों, इस तरह से ये अपना चैप्टर द एनिमी ख़त्म होता है। एक डॉक्टर की कहानी जो कि लास्ट में ही इज़ proved to be a great doctor and a great surgeon is his father expected to be out of him. So that's the end of the chapter, and if you like my videos, if you like my style of teaching, you should like, share and subscribe to my channel so that you can get these kind of informative videos. We will meet in the next video. Till then, thanks for watching. Bye.